guys, welcome to my YouTube channel. I'm Shreya, Assistant Manager in SBI. So yesterday I uploaded a video about SBI PO 2023 notification. As I said कि मैं second part में I'll be talking about the tips and strategy to clear this particular examination that I'll be discussing in this video. आई नो कि अभी टाइम आपका बहुत क्रूशियल है, 1.5 मंथ के अराउंड है एग्ज़ाम में, तो आप टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करें। जो रेलिवेंट चीज़ें होंगी मैं उसी को कवर करूँगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी चीज़ आपको लगे कि हाँ मेरे को इस पर डाउट रहेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ मेंशन कर सकते हो। एंड एल्स यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। मेरे चैनल पे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक अवेलेबल है। फर्स्ट पॉइंट दैट आई फील इम्पॉर्टेंट इज़ आप लोग अपने माइंड में ये चीज़ डालो, जस्ट फीड इट इनटू योर माइंड दैट प्रीलिम्स एंड मेंस both have to be prepared alongside. I mean, you cannot do this thing ki first I'll appear or I'll prepare for the prelims examination. Once I'm into it, like I'll give the exam on the day of exam, when I'll see the analysis videos that okay, this is the expected cutoff or this could be the range I am in, I'm out, then I'll start preparing for means. So if you're thinking in that way, then I'm sorry, it's very difficult or next to impossible to get selected, to be honest. प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नवंबर में है, मेंस का एग्ज़ाम ये दिसंबर या जनवरी, दो मतलब मंथ्स को क्लब करा है, इसके बीच में हो सकता है। तो आप खुद ही सोचो दैट मेंस एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड विद इन अ मंथ। सो डू यू थिंक कि SBI PO की मेंस की प्रिपरेशन एक मंथ में हो जाएगी? आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने के बाद में कर लोगे, आप GA भी कर लोगे, आप DI भी कर लोगे, आप रीजनिंग भी कर लोगे। इफ़ यू कैन डू दैट, मैन यू आर अ सुपर ह्यूमन एक्चुअली। मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ दैट whosoever is watching this video, they are a serious aspirant and they are preparing for this particular examination even before the notification came out. So I'm assuming this thing. If not, then guys, you'll have to work. Yes, obviously you can, if you're highly talented or very hard working, you can get selection in first attempt. I mean, if you have no experience or you're someone who has started preparing right after the notification, so it would be a difficult thing, but I'll still suggest that go with prelims and mains preparation together. In prelims and mains, the only subject that is different is general awareness. सिर्फ GA ही है जो कि मेंस में एड ऑन हो रहा है। रीजनिंग ऑल्सो इट्स लाइक डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन इज द पजल section, major portion, I mean 40-50% it's puzzle, and in the rest there are logical reasoning questions like statement assumption, statement conclusion. Similarly in prelims the level is a bit lower, I mean, but yeah, time plays an important role in prelims examination. I mean, in prelims you'll have all these kind of questions, puzzle, blood relation, decoding. आपको पजल्स भी सॉल्व करने, अच्छे लेवल के पजल सॉल्व करने। आप कोई भी मॉक टेस्ट उठा लो, जो भी आपको रेलिवेंट लगता है, जिसको भी आप समझते हो कि हाँ ये अच्छा है, ये सही है, आप उसको लेकर के बनाओ, just go through it. Then puzzles, actually I'm telling you, puzzle are very important. हाँ, puzzle को अगर आप solve करते हो cases के through, like if you do it through case 1, case 2, this is a pattern, you can check it out on YouTube or any online classes. They tell you that how you're supposed to solve a puzzle, and puzzle is basically a matter of practice. Although entire paper is a matter of practice, as much as you practice you will excel. One thing I'll mention that एग्जामिनेशन में ईगो पे नहीं लेने का पजल्स को। मान लो आपने 1000 पजल बना ली, लेकिन हो सकता है पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो नहीं क्रैक हो पाए पजल का। आई मीन 3 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, उसमें से मे बी 1 कुड बी डिफ़िकल्ट। सो डोंट गेट स्टक इन टू इट, डोंट bring your ego, just skip. You should know how to skip particular question, and you should try this in your mock test also. Next topic, mathematics. In prelims, mathematics would comprise of all the topics of arithmetic, right? Percentage, profit loss, simple interest, compound interest, modes and stream, trains, all these topics are there. You have to solve it out. I mean, you should touch at least each and every topic. You should have knowledge about each and every topic. आपका concept कहीं पर अगर आपको लग रहा है कि वीक है, आप बुक से देख लो अगर आप बुक देखना चाह रहे हो, या फिर आप नेट पे उसको देख लो, या फिर कोई वीडियो देख लो जो आपको सही लगे। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, तो आप वो देख सकते हो। उससे आप मैथ्स का कॉन्सेप्ट यू कैन क्लियर आउट। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक फॉर मेंस एग्जामिनेशन। इन मेंस इट इज़ DI.
data interpretation. So in DI they'll give you some bar graph, pie chart or some Caslet DI. These all topics are there जो कि पैराग्राफ रहता है, उससे आपको फिर सॉल्व करना रहता है. तो मैथ्स का ये पैटर्न होता है मेंस में. बट या आपको DI जो है या ग्राफ्स वगैरह जो है वो प्रीलिम्स में भी आएंगे. तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, जो मैंने खुद किया था, मैं मेंस के भी क्वेश्चंस लगाती थी जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी. मेंस के क्वेश्चंस बनाने ज़रूरी हैं, बिकॉज आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि प्रीलिम्स लेवल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और मेंस को आपने बिल्कुल, मतलब यू हैव नो आइडिया, राइट. को पता ही नहीं कि मेंस का क्वेश्चंस कैसा आ सकता है. तो एकदम से अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो सपोज़, एंड आपका मेंस का पेपर फिर आप कैसे करोगे, नहीं हो पाएगा. तो मेंस का भी आइडिया रखना होगा अपने को. ये नहीं बोल रही दैट यू गाइस शुड गिव एवरी डे मॉक ऑफ, आई मीन मेंस के मॉक 2 पर डे, 3 घंटे के मॉक लगाओ. नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही. बट आपको मेंस के पेपर का आइडिया होना चाहिए. यू शुड नो अबाउट व्हाट इज़ द लेवल ऑफ क्वेश्चन, और उससे आप कंपेयर कर पाओगे कि ओके प्रीलिम्स का लेवल ये है, मेंस का लेवल ये है. नेक्स्ट सेक्शन दैट इज़ इंग्लिश सेक्शन. मेंस में थोड़ी सी अच्छे लेवल की इंग्लिश आती है, तो वो आपको इन एनी केस दोनों की प्रिपरेशन, मतलब आप इंग्लिश के केस में आपका ऐसा कुछ नहीं कि प्रीलिम्स के लिए अलग से होगा, मेंस के लिए अलग से होगा. आप जो मॉक लगाओगे वो दोनों के लिए रेलेवेंट जाएगा. बट हाँ, इंग्लिश को आप स्किप नहीं कर सकते. यू सिंपली कांट अफोर्ड टू स्किप इंग्लिश. आई मीन इंग्लिश इज़ वन ऑफ द रीजन्स व्हाई आई गॉट इनटू SBI PO, बिकॉज इंग्लिश में जब मैं पेपर दे रही थी तो मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आए इंग्लिश सेक्शन के कारण, जिससे मेरा ओवरऑल अटैम्प्ट बढ़ गया था. मेरा खुद का पेपर था. तो मैथ्स एंड रीजनिंग ने तो भाई गंदी हालत कर रखी थी लोगों की, ठीक है. बट मेरा चूँकि इंग्लिश अच्छा है, इट्स माई स्ट्रेंथ, तो वो चीज़ ने मेरे को बहुत हेल्प किया मेरे प्रीलिम्स में भी और मेरे मेंस एग्ज़ाम में भी. तो इंग्लिश को बिल्कुल फोकस करो. आप कोशिश करो टू गेट इनटू दैट कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन ज़्यादा. मतलब जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपसे उस तरीके के पूछेंगे पैसेजेस के, तो वो प्रैक्टिस आपको रखनी पड़ेगी. और मॉक्स में अच्छे पैसेजेस रहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो आपकी इंग्लिश की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी पैसेज वगैरह के क्वेश्चंस ज़्यादा बनाने से. हाँ, बैंकिंग के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वो एरर डिटेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब SSC के टाइप का नहीं आता, तो उन चीज़ों में उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. मेजरली यू विल हैव टू फोकस ऑन योर पैसेज रीडिंग स्किल. वो जितना इम्प्रूव होगा उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी. द थिंग इज़ कि इंग्लिश में निगेटिव जाने के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं. इट्स वेरी हाई. आई मीन इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन इन रीजनिंग और मैथ, इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन इन मैथ्स, योर आंसर कम्स आउट राइट, you are in. I mean, you will get your marks. But in English, you cannot be sure. Even if you solve 30 out of 30 questions, still you are not sure whether how much marks you will get. Which questions were right, which questions were wrong. Accuracy is the thing जो कि English में students को कई बार काफ़ी cheat करती है. Now the next topic, जनरल अवेयरनेस सेक्शन, जो मैंने अपने पिछली वीडियो में भी आई थिंक जो मैंने 1 ईयर पहले बनाया होगा, उसमें भी मैंने ये बात बोली थी कि GA सेक्शन इज़ द गेम चेंजर. एक्चुअली इट इज़. आई नो प्रीलिम्स में GA नहीं आता है, बट यू कैन नॉट इग्नोर पास्ट 6 मंथ का तो आपका करंट अफेयर्स होना ही होना चाहिए. कहीं से भी पूछ रहे हैं, कहीं से भी पूछते रहते हैं, ठीक है. मतलब कुछ भी क्वेश्चंस आ जाएगा, डीप में पढ़ना पड़ेगा आपको. कोई भी न्यूज़ अगर मिली उसके बारे में आपको पता होना चाहिए सही से. और ये तभी होगा व्हेन यू आर इन अ रूटीन. आपका ये रूटीन है कि आप करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हो, बिकॉज भाई न्यूज़ हर दूसरे दिन बदलती है, तो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन के लिए. ये जो मंथ है, 1 मंथ, इसको आप वेस्ट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट. यू विल हैव टू वर्क ऑन योर GA. आई मीन यू कैन गिव 2 hours a day, just 2 hours a day at least to your GA. प्रीलिम्स से ही, अभी से ही आपको GA करते जाना है. अलॉन्ग विथ योर रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश प्रिपरेशन आपको GA पे ध्यान देना है. करंट अफेयर्स आएगा, बैंकिंग से रिलेटेड जो बेसिक बैंकिंग है वही पूछेंगे. आस्क यू अबाउट RBI, they'll ask you about monetary policy, they can ask you about the functioning of other banks like foundation days and something about the capital market, share market, primary market, treasury bills. These all topics can come. नेट से PDFs वगैरह डाउनलोड करिए. मंथली जो आपका करंट अफेयर्स आता है वो. उसके अलावा बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज़ का भी आप सर्च कर सकते हो. नेट पे आपको मिल जाएगा कंटेंट. वो चीज़ जो आपको लगे कि ओके मुझे नहीं समझ आ रही, यू कैन चेक इट आउट ऑन गूगल. हाँ,
वन थिंग यू कैन डू, आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं जीए के, वो क्वेश्चंस उठा लीजिए प्रीवियस ईयर, राइट। उसमें से आप देख लो कि क्या क्या टॉपिक्स टच कर रहा है। आरबीआई से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो भाई मैंने आरबीआई को पढ़ लिया, रिजर्व बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, वो कैसे बैंक को कंट्रोल करता है, कैसे मॉनेटरी पॉलिसी उसकी वर्क करती है, ये सब चीज़ें आप समझ लो, आ सकता है एग्ज़ाम में। मैंने ओवरऑल बता दिया, प्रीलिम्स के साथ में आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी अगर आपको एक्चुअली में मेंस भी अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है। नेक्स्ट थिंग, मॉक टेस्ट मैंडेटरी फॉर प्रीलिम्स, एटलीस्ट यू शुड गिव 2 मॉक्स पर डे। यू कैन स्किप, किसी एक आध दिन स्किप कर सकते हो, लेकिन पर डे एटलीस्ट 2 मॉक्स देने हैं। मैंने खुद दिए थे जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, आई यूज़ टू गिव मॉक्स एवरी डे। प्रीलिम्स के मॉक लगाना उतना मुश्किल नहीं है, 1 घंटे का पेपर होता है, तो आप एटलीस्ट 2 घंटे मॉक दीजिए एंड एनालाइज दैट लेटर ऑन। ये नहीं कि मॉक दिया, क्वेश्चंस अच्छा ये छूट गए तो छूट गए, ऐसा नहीं करना है। क्यों छूटे, क्या था जो मैं नहीं समझ पाया, मैं नहीं समझ पाई, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो एनालिसिस के लिए भी टाइम देना है, मॉक तो रोज़ ही देना है, जो भी आपको पसंद हो, जिसका भी आपको सही लगे, मॉक टेस्ट आपको देना है। रियल टाइम एक्सपीरियंस होता जाएगा एग्ज़ाम का, जो आप मॉक दोगे तो उससे ये आपको बेनिफिट है, आपकी हैबिट बनी रहेगी एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट में कोप अप करने का, राइट। इसके लिए मौका आपको देना है, स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी आएगी एंड यू कैन स्ट्रैटेजाइज कि ओके व्हाट इज़ वर्किंग फॉर मी एंड व्हाट्स नॉट, विच सेक्शन इज़ गुड एंड इन विच सेक्शन आई एम वीक। थर्ड थिंग, रिविजन एंड मल्टीपल रिविजन करना है। ज़्यादा सोर्सेज नहीं लेने हैं कि आप 5 सोर्सेज से पढ़ रहे हो, 10 सोर्सेज देख रहे हो, कभी कुछ स्क्रॉल कर रहे हो, कभी कुछ स्क्रॉल कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। हर किसी का मेंटल लेवल, हर किसी की चॉइस अलग अलग होती है। हो सकता है कि मेरे को कोई चीज़ जो इजीली समझ में आ रही है वो आपको प्रॉब्लम हो उसको अंडरस्टैंड करने में, या आपको जो चीज़ इजीली समझ में आ रही है, टेक फॉर एग्जांपल कोई भी, आप कहीं से पीडीएफ पढ़ रहे हो, मैं कहीं से पढ़ रही हूँ, मैं आपको बोल दूँ कि भैया इसका बहुत अच्छा कंटेंट है, हो सकता है आपको नहीं लगे, तो आपको उसमें नहीं घुसने। कल वाली वीडियो में भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, रिलाई ऑन द सोर्सेज दैट यू हैव बीन यूजिंग, राइट। आपको मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, उन्हीं सोर्सेज को रिवाइज करना है। 1 या 2 सोर्सेज रखिए हर टॉपिक के लिए जो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये समझ आ रहा है। नेक्स्ट थिंग इज़ PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत रेलिवेंट होते हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। लाइक SSC वगैरह के तो एग्ज़ाम में आपको प्रॉपर आंसर की आ जाती है, तो आपको एकदम पता होता है कि ओके ये क्वेश्चंस थे। बट बैंकिंग में ऐसा कुछ नहीं होता रिलीज़, बट स्टिल जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो आए हुए होते हैं वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होते हैं, तो आप उसको देखिए। नॉट जस्ट SBI PO, टेक इट फॉर IBPS या फिर आपका IBPS PO, RRB PO, जो भी है आप 8-10 मतलब पेपर्स रख लो, एटलीस्ट 10 पेपर्स आपको देखना चाहिए पिछले साल का या उसके प्रीवियस ईयर का जो आया है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर है। आई मीन वो एग्जैक्टली SBI ने सेट किया है या IBPS का सेट किया हुआ पेपर है, तो वो आपको देखना ही देखना है। सम कोचिंग्स ऑल्सो प्रोवाइड प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, दैट इज़ ऑल्सो गुड। You can give it in the form of mock test also, you can use it in the form of PDF as well। तो आपको ये भी करना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के चलने हैं, आपको आइडिया होना है कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके का क्वेश्चन आया है, क्या पैटर्न रहा है। नेक्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, कोई ऐसी चीज़ जो आपका टाइम वेस्ट करे उन चीज़ों को अवॉइड करना है, बी इट सोशल मीडिया और सम ग्रुप्स ऑन ऑल, ये अवॉइड करना है। हाँ, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट आप कर सकते हो, बिकॉज अ हेल्दी माइंड लाइज इन अ हेल्दी बॉडी। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिकम अ बुक फॉर्म, ऐसा नहीं करना है। मैं खुद भी जब प्रिपेयर करती थी तो आई यूज़ टू स्टडी एटलीस्ट 6-7 आवर्स, दैट्स इट। उसके अलावा मैं बाकी चीज़ें करती थी। थोड़ा सा सीरियसली अभी टाइम देना होगा, पर डे हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना होगा, एटलीस्ट 2-2 घंटे आपको ईच सब्जेक्ट को देना ही है। इसके अलावा मॉक टेस्ट देना। चीज़ें मुझे लगी कि रेलेवेंट हो सकती हैं आपके लिए, वो मैंने डिस्कस किया। आई समराइज इट। फर्स्ट थिंग, प्रीलिम्स एंड मेंस हैव टू बी प्रिपेयर्ड टुगेदर। दोनों की तैयारी साथ में करनी है, दोनों के क्वेश्चंस आपको साथ में देना है। प्रीलिम्स का तो मॉक टेस्ट आपको 2 लगाना ही है, 2 मॉक टेस्ट एवरी डे
एग्ज़ाम के डेट तक। किसी दिन आप स्किप मार सकते हो, बट कोशिश करो कि ऐसा ना हो। आप 2 ही एंड मेंस का भी हफ्ते में एटलीस्ट 2 मॉक लगा देना, मेंस का भी। जीए में आपको अच्छा स्कोर करने के लिए अच्छा कमांड होना चाहिए, बिकॉज जीए में आप पेपर वर्क नहीं है, आपको आंसर पता है तो फटाफट करते चले जाओगे एंड उससे मेंस में स्कोर आपका बूस्ट होगा। बिकॉज रीजनिंग एंड मैथ्स जो है वो काफ़ी टफ आता है एसबीआई में हर बार, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं। मतलब यू शुड मेक दीज टॉपिक स्ट्रॉन्ग, बट अलॉन्ग साइड आपको जीए और इंग्लिश को एज अ बैकअप लेके चलना है कि भैया मेरे इसमें मार्क्स अच्छे आने चाहिए। यही सारा चीज़ आप डेली बेसिस पे अगर करते हो पर डे, तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आप एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स भी क्लियर कर लोगे और मेंस भी कर लोगे। एंड ये दोनों जब हो जाएगा उसके बाद तो फिर इंटरव्यू को लेकर के मैं आपसे आगे भी वीडियो, अगर यू गाइज विल एक्सपेक्ट, तो मैं वो भी बनाऊंगी इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन को लेकर के। अगर आपका कोई भी क्वेरी रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, डू वेल एंड गेट सक्सेस। टेक केयर, बाय बाय।